Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now I Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue the chapter 10, The Beggar, written by Anton Chekhov. Now in the first part of this chapter, first part of the video, we have read till page number 2. And so far we have learnt how the kind of man who actually called that beggar who was lying to him into his yard, into his house, to give him some work so that he could work and earn some bread butter for himself by working hard. However, we have seen jealous from the servant who was working, the maid who was working with that kind person, and she actually took him as a competitor, and she while taking him to the yard, she was showing her frustration by banging the door. तो हम लोगों ने पहले पार्ट में जो है इतना कुछ पढ़ा है, इतना कुछ देखा है. नाउ विल रीड मोर. हम लोग आगे पढ़ेंगे एंड द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विल बी डन. Difficult word meaning will be also discussed in this video. So let's start. We'll start from page number 3. As you can see here in page 3, the picture, this is the servant who was getting angry. This is the man who was a liar, you can say. Like, first he told that he was a expelled student, later on he said he was a teacher, and many more things he told to this kind person. Now let's start. So we'll go through the reading. Next he saw the pseudo teacher sit himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fists. The woman flung down an axe at his feet, spat angrily, and, judging from the expression of her lips, began to scold him. The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet, and tapped it feebly with the axe. The billet wavered and fell down. The beggar again pulled it to him, blew on his freezing hands, and tapped it with his axe cautiously, as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. Now let me tell you the word meaning first. So billet here means billet का मतलब होता है आपका here a thick piece of wood. feebly का मतलब होता है feebly मतलब होता है weakly, मतलब कमज़ोर प्रहार जो करते हैं, that is called feebly, right? Now in this para जो बेगर था उसको, जिसको कि तथाकथित शूडो टीचर जो कह रहा था खुद को कि मैं टीचर हूँ, एक्सपेल्ड स्टूडेंट हूँ, उसको जब काम मिलता है तो उसको ले जा करके वहाँ पे बिठाता है. ओल्गा जो है बिठाती है उसको, और वो एक लंबी लकड़ी पे बैठ जाता है, और उसके बाद वो कुछ गहन सोच में डूब जाता है, अपने चिक्स के ऊपर ऐसे हाथ को मोड़ करके, जैसे हम सोच विचार के मुद्रा में बैठ जाते हैं. और जब वो इन सारी चीज़ों को सोच रहा होता, उसी वक्त जो है ओल्गा जो मेड थी, उसने एक कुल्हाड़ी उसकी तरफ उछाल के फेंका, और गुस्से में थी वो, उसको स्कॉल्ड कर रही थी, कुछ कुछ बोल रही थी. उसके एक्सप्रेशंस को, लिप के एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लगा. फिर उसके बाद जो बेगर है वो उस चीज़ को, कुल्हाड़ी को उठाता है, और उठाने के बाद एक लकड़ी बिलेट जो है उठा करके अपने पैरों के बीच में रखता है, और डरते हुए जो है उस पर प्रहार करता है. काफ़ी कमज़ोर प्रहार था, फीबली प्रहार था उस कुल्हाड़ी से. तो वो लकड़ी जो है मतलब सही जगह पे वो एक्स नहीं लगने के कारण इधर उधर हिल के और गिर जाता है, हिल डुल के. फिर उसके बाद
उससे जब ये नहीं हो पाया तो वो दूसरी बार वो अटेम्प्ट करता है उसको। इस बार जो है वो अपने हाथों को गर्म करने की कोशिश करता है, बिकॉज वेदर बहुत ठंड, वहाँ पे काफ़ी ठंड था, तो अपने हाथ को गर्म करता है और इस बार कुल्हाड़ी का जो हैंडल है वो काफ़ी सावधानी पूर्वक पकड़ता है। और साथ ही साथ उसके मन में ये भी डर था कि कहीं वो लकड़ी को हिट करते टाइम उसके जूते पे वो कुल्हाड़ी न चल जाए, या फिर उसके जूते पे अगर चल गया तो पैरों की उंगलियां जो है कट के गिर सकती है। सो उसने काफ़ी फीबल प्रहार फिर से किया इस बार स्टिक के ऊपर, और वो लकड़ी फिर से जो है हिल के नीचे गिर गया। Now Sergei's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself of having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at manual hour in the cold. Now here manual का मतलब होता है manual hour labor, means manual labor का मतलब होता है an unskilled or inferior to job. अनस्किल्ड उसको बोलते हैं जो जिसको काम करने का तजुर्बा नहीं है या फिर उस काम के लिए फिट नहीं है। तो सर्गी जो दूर से मतलब यार्ड में देख रहा होता है कि कैसे ये काम कर रहा है, अब उसका गुस्सा जो है धीरे धीरे काफूर हो जाता है, गायब हो जाता है, और अब उसको थोड़ा बहुत जो है सॉरी फील होता है, शर्मिंदगी महसूस होने लगता है खुद के ऊपर, क्योंकि उसने एक ऐसे गरीब इंसान से इतना मेहनत वाला काम करवा रहा है जो इस ठंडे वेदर में काम करने के लिए फ़िट नहीं है। और इस बात को लेकर के उसको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और ख़ुद के ऊपर सॉरी भी महसूस होता है। एंड लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बिन चॉप्ड। 1 घंटे के बाद एल्गा जो है जाती है सर्गी के पास और बोलती है कि सारा काम जो है हो गया है, वुड का जो है पीसेस बना दिया गया चॉपिंग करके। और वो जब इस बात को इन्फॉर्म करती है तो सर्गी बोलता है, गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, सेड सर्गी, इफ़ ही वांट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट डाउन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम। तो बोलता बहुत अच्छी बात है, उसको जा कर के हाफ रूबल दे दो, और उसको साथ ही साथ ये बोल देना कि अगर वो और भी काम करना चाहता है तो हर महीने की पहली तारीख को आ जाए, हम उसको लकड़ियाँ काटने का काम दे देंगे, और अगर वो चाहे तो और भी उसके लिए काम जो है हम ढूंढ सकते हैं और भी काम अरेंज कर सकते हैं। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्नड हाफ अ रूबल, although he could barely stand on his legs. From that day on, he often appeared in the yard, and every time work was found for him. Now he would shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust out of rugs and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him. Now in this para we'll go through the word meaning. Now waif means waif का मतलब होता है a homeless person, ठीक है, a homeless person जिसके पास कोई घर नहीं होता। एंड शोवल का मतलब होता है बर्फ़ को हटाना, रिमूव स्नो विथ अ शोवल। एक टूल होता है, टूल रिजेंबलिंग अ स्पेड विथ अ ब्रॉड ब्लेड एंड टिपिकली अपटर्न्ड साइड, ठीक है। तो एक ऐसा टूल होता है जिससे बर्फ़ को साफ़ किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा मीन न्यूज़ में, या कभी कोई ऐसा जगह पे बर्फ़ गिरा हो तो उस टूल से जो है बर्फ़ को साफ़ किया जाता है। नाउ इन दिस पैरा द नरेटर सेज कि अब जो बेगर है वो हर महीने की पहली तारीख को आता था और काम करता था, उसको हाफ अ रूबल मिल जाता था। although he was heavily drunk and could not even stand on his feet, चूँकि वो जब भी आता था तो शराब पीकर आता था, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता था। एंड ही वेंट देयर फॉर वर्क ऑफन, और रेगुलर जो है वो वहाँ पे काम करने के लिए आना शुरू कर दिया। वहाँ पे जब वो आता था तो अलग अलग तरह का काम उसको मतलब दिया जाने लगा, जैसे लकड़ियों को काटने के अलावा शोवलिंग द स्नो, बर्फ़ को साफ़ करना, सेट द वुड इन द शेड, लकड़ियों को सही से अरेंज करके शेड में रखना, रग्स से डस्ट को रिमूव करना, ये सारे काम उसको मिलने लगे। और इसके बदले में उसको 20 to 40 कोपेक्स जो है
वो पेमेंट होने लगा। और एक बार सर्गी ने उसको अपना एक पेयर ऑफ ट्राउज़र भी दिया था, बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो रही थी, इसके कारण से। Now, when Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. This time, the wife was sober, gloomy, and silent. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head and not even making a pretense of appearing busy. He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness, and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergei sent for him. Now in this we will see the word meaning first. हम लोग word meaning पहले देखेंगे। हॉलिंग का मतलब होता है यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग, और प्रिटेंस का मतलब होता है यहाँ पे टू शो समथिंग विच एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। आप मतलब कुछ ऐसा दिखाना चाह रहे हैं जो आप कर नहीं रहे हो। और जीर्ड एट हिम, फन, मेड फन ऑफ हिम, उसका मजाक बनाना, जीर्ड ऑफ हिम, जीर्ड एट हिम। होल्ड ऑन जस्ट 1 सेकेंड। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट। सो इस बार सर्गी जो है अपना घर बदल रहा था, ही वॉज गोइंग टू शिफ्ट इन अनदर हाउस। तो उसने इस बेगर को हायर किया ताकि वो उसकी मदद कर दे सामान को और फर्नीचर को मूव करने में, यहाँ से वहाँ पहुँचाने में। और नाउ द मैन वॉज नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, चूँकि इस बार वो व्यक्ति शराब पी करके नहीं आया था, बट वो काफ़ी उदास था। ही वॉज सैड एंड रिमाइंड क्वाइट, और काफ़ी शांत भी था, उदास और शांत दोनों था। उसने मुश्किल से कुछ फर्नीचर हटाए होंगे, उसने मतलब मुश्किल से कोई काम किया होगा, ज़्यादा काम। सिर्फ वो गाड़ी के आगे पीछे अपना सर जो है लाइक हेड हैंगिंग और लो, मतलब एक जिसको हम बोलते हैं कि थका हारा इंसान जैसे, लाइक शोइंग कि ही इज़ क्वाइट बीन टायर्ड, एक ऐसा अपीयरेंस उसका था यहाँ पे। और इसके कारण जो दूसरे वर्कर थे वो इसका मजाक उड़ा रहे थे। ही वॉज सिवरिंग, वो काफ़ी काँप भी रहा था ठंडे वेदर के कारण, कोल्ड वेदर के कारण। और जब दूसरे जो वर्कर हैं उसका मजाक उड़ा रहे थे, चूँकि इसने इसका जो कोट, ओवर कोट इसने पहन रखा था वो फटा हुआ था, तो इसके कारण उसको काफ़ी बुरा लग रहा था। और इसमें इसकी एक ईमानदारी ये थी कि चूँकि वो काम नहीं कर रहा था तो ये भी नहीं दिखा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और ये एक ईमानदारी वाली बात उसने मतलब दिखाई सर्गी को, और इस बात से सर्गी जो है काफ़ी खुश हुआ था। सर्गी ने बाद में उसको बुलाया जब सारे काम ख़त्म हो गए तो, एंड ही सेड, वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड, handing him a ruble. Here is for your pains. I see you are sober and have no objection to work. What is your name? Now सर्गी उसको जब बुलाता तो बोलता है कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, मेरे शब्दों का, मेरी बातों का आपके ऊपर प्रभाव हुआ है। और साथ ही साथ उसको एक रूबल देता है और बोलता है ये तुम्हारे दर्द के लिए है। बिकॉज सर्गी बोलता है कि चूँकि उसने कोई काम नहीं किया फिर भी उसने पीना छोड़ दिया, शराब उसने नहीं पिया है और वो काम करना चाहता है। इस बात को देख के काफ़ी खुश है और उससे उसका नाम पूछता है। सो ही रिप्लाइड लश्कॉफ, वो अपना नाम बताता है, लश्कॉफ। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। तो उससे जो है सर्गी पूछता है कि ठीक है लश्कॉफ, मैं तुम्हें कुछ अच्छा काम दूंगा, क्या तुम लिख सकते हो। तो ही सेड आई कैन, उसने बोला हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। तो उसके बाद सर्गी उसके हाथ में एक लेटर थमाता है और बोलता है कि इसको ले जा करके मेरे एक दोस्त को देना, वो तुम्हें कुछ कॉपिंग का काम देगा। मेहनत से काम करो,
पीना नहीं, और याद रखना जो मैंने बातें तुम्हें बताई है उन सब बातों को ध्यान रखना। और उसके बाद वो उसको गुड बाय करता है, नमस्ते बोलता है। नाउ प्लीज्ड एट हैविंग put a man on the right path, Sergei tapped Luskov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Luskov took the letter, and from that day forth came no more to do yard for work. Now in this part you can see कि काफ़ी खुशी पूर्वक जो है उस सर्गी को काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि उसने एक व्यक्ति को अच्छे रास्ते पे ला दिया। सर्गी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको काफ़ी सहानुभूति दी, और उसने उससे हाथ भी मिलाए जाते टाइम। लश्कफ वो लेटर लेके वहाँ से निकल जाता है, और लस्कॉफ वेंट अवे विद द लेटर एंड नेवर रिटर्न। उसके बाद वो लेटर लेके जाने के बाद फिर वापस वहाँ से उस यार्ड में काम करने कभी नहीं आता है। 2 years went by. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. Now here timidly मतलब डर पूर्वक, या फिर शाई या नर्वसनेस जो होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं। शर्म के मारे या नर्वस होकर के जो डर मन में बैठ जाता है उसको टिमिडली बोलेंगे। ना इन दिस पैरा 2 साल के बाद एक शाम की बात है जब सर्गी जो है वो एक सिनेमा हॉल थिएटर जिसको बोलते हैं जहाँ पे मूवीज़ चलती है, वो ड्रामा देखने गया होगा। तो वहाँ पे टिकट विंडो के पास खड़ा होकर के टिकट लेने की कोशिश कर रहा था, और उसने लस्कॉफ को वहाँ पे अपने बगल में खड़ा पाया। इस बार जब उसकी नज़र उसके ऊपर गई तो काफ़ी अच्छा कपड़े पहन रखे थे उसने। He was well dressed, bore a coat, एक अच्छा सा कोट पहन रखा था। The collar was made of fur, उसका जो कॉलर था फर का बना हुआ था, और साथ ही साथ उसने wore a cap made of sealskin, एक sealskin का बना हुआ कैप था वो उसने डाल रखा था। और वो काफ़ी शाई महसूस कर रहा था। टिकट खरीदने के लिए में भी उसने टिकट काउंटर पे जाकर के बोला कि गैलरी की सीट उसको मिल सकती है क्या। उसको टिकट मिला तो उसने पैसे पे किए, और जो पैसे उसने पे किए इस बार वो कॉपर मेड कॉइन था। Lushkov, is that you? Cried Sergei, recognizing in the little man his former wood chopper. How are you? What are you doing? How is everything with you? सर्गी जो है उसको पहचान जाता है, उसको बोलता है लश्कॉफ, और उससे मिलता है, उसको बोलता है कि कैसा था वो, क्या कर रहा है वो, और क्या सब चीज़ सही ठीक जा रहा है उसके लाइफ में। Alright, I am notary now and paid 35 rubles a month. नाउ नोटरी का मतलब यहाँ पे होता है अ पर्सन ऑथोराइज टू परफॉर्म सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज़। नोटरी का मतलब होता है अ पर्सन ऑथोराइज टू परफॉर्म सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज़, और ख़ास करके स्पेशली टू ड्रॉ अप और सर्टिफाई कॉन्ट्रैक्ट्स। जो कॉन्ट्रैक्ट्स को आप नोटरी विभाग में आप जाते होंगे, नोटरी विभाग है सत्यापित करवाने के लिए किसी चीज़ को, कॉन्ट्रैक्ट हो या डीड हो या कोई अलग डॉक्यूमेंट जिसको आप न्यायिक व्यवस्था में उसको हम यूज करते हैं, कोर्ट्स में ये देखने को मिलता है। तो सर्गी बोलता है लस्कॉफ उसको जवाब देता है कि यस वो काफ़ी अच्छा है, और ही इज़ नाउ वर्किंग एज अ नोटरी, वो एज ए नोटरी काम करता है, और उसको 35 रूबल्स अ मंथ जो है उसकी सैलरी हो गई है। So dear student, now we will continue this story in the next part of the video. I hope this story would clear all your doubts and you will love to listen the story because the explanation is done line by line. I'm not going through the summarization of the chapter, whole chapter at once. हम इसको धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे ताकि कहानी आपके अंडरस्टैंडिंग में अच्छे से बैठ जाए।
Now we will meet in the next part of the video of this chapter. So till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.